Hello students, now we start with our next chapter, exact differential equation. Now we have to discuss when equation is exact. हमारी equation exact कब होती है? Yes, is equation of the type capital N dx plus capital N dy equal to 0. ये हमारी equation है जिसमें what are capital M and N? These are the functions of x and y. ये functions हैं हमारे x और y में हमारे दोनों ये क्या है बेटे फंक्शंस. नाउ दिस इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट if m dx plus m dy can represent in the form of du. This means derivative of some function. u क्या है हमारे पास is a function of x and y. So this means we can represent this in form of derivative of some function. So इक्वेशन को जब हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, देन दैट इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट इक्वेशन. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव x dy plus y dx equal to 0. सो ऑन कंपेयरिंग यू हैव dx का कोएफिशिएंट हमारे पास कैपिटल M आ गया, dy का कोएफिशिएंट कैपिटल N क्या आ गया हमारे पास x. सो दिस इज द इक्वेशन. नाउ वी हैव टू चेक दिस इज एक्जैक्ट और नॉट. Yes, we can represent in the form of derivative of x into y. तो हम चेक करते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है. Yes, first function as it is derivative of second is dy plus then y as it is derivative of first is dx. So this result is can be represented in the form of a derivative of xy. This means this equation is exact differential equation and और इसमें is equal to derivative of xy. So this equation is exact differential equation. Another example, if question is of the type sin x cos y dy plus cos x sin y dx is equal to 0. Now we have to check if this equation is exact or not. Yes, this can be represented in the form of derivative of sin x sin y. Yes, check करते हैं sin x as it is derivative of sin y is cos y dy plus next is cos x dx और sin y as it is. So first term का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे cos y dy. This sin x as it is, next cos x dx sin y as it is. This means this function also can be represented in the form of derivative of function sin x sin y. This means this equation is also exact because we can represent in the form of derivative of some function which is equal to sin x sin y. So these are the exact differential equations. Now we are discussing theorem necessary and sufficient condition. The necessary and sufficient condition for the equation capital N dx plus N dy equal to 0 to be exact, where we know m और n क्या है फंक्शन ऑफ x एंड y है और इस इक्वेशन की एग्जैक्ट होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है बेटे वो हमने डिस्कस करना है. फर्दर m और n या m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आर कंटीन्यूअस फंक्शन. ये फंक्शन हमारे क्या है बेटे कंटीन्यूअस फंक्शन है. सो दिस इज द थ्योरम which for which we have to prove necessary and sufficient condition that equation will be exact. Yes, firstly necessary condition लिखते हैं हम, लेके चलते हैं कि let this equation m dx plus m dy equal to 0 is exact. ये equation exact है, हमने अभी डिस्कस की है. equation exact का मतलब क्या है? this can be write as equal to derivative of some function like u. so इसका मतलब क्या हो गया? if this is exact then this can be write as capital M dx plus M dy is equal to du. But what is du? u is a function of x and y. तो जब हमने डेरिवेटिव ऑफ u लेना है हम किसी वेरिएबल के साथ नहीं ले रहे, x और y दोनों के साथ आएगा. दिस मींस व्हाट इज du? दिस इज u का डेरिवेटिव x के साथ लिया dx प्लस देन वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू y करली u अपॉन करली y साथ में क्या आ जाएगा dy. बिकॉज यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं लिया जिसके लिए हम विद रिस्पेक्ट टू x लिया, उसे तो दोनों के लिए आएगा बिकॉज u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. सो du इज इक्वल टू u बाय x dx पर u अपॉन करली y dy. नेक्स्ट क्या है बेटे? अब हमें इन दोनों इक्वेशंस में से
कोफिशिएंट क्या करेंगे, कंपेयर, dx वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और dy वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, बिकॉज इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है, या आप ये कह सकते हो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ वी आर कंपेयरिंग, यस, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ dx एंड dy। यस, यहाँ पे dx का कोफिशिएंट कैपिटल M है और यहाँ पे क्या है, कर्ल u और कर्ल x। सिमिलरली dy का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे क्या है, कर्ल u upon कर्ल y on comparing coefficients of dx and dy. Next step is we have to differentiate this with respect to y. m का डेरिवेटिव हमने किसके with respect to लेना है, y लेना है, so this become कर्ल m upon कर्ल y। इस साइड भी आएगा, तो यहाँ पे पहले एक डेरिवेटिव था x के विद रिस्पेक्ट टू, अब y के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, तो ऊपर डबल डेरिवेटिव और आ गया और नीचे क्या लिखेंगे, कर्ल y कर्ल x। सिमिलरली n फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक डेरिवेटिव है तो डबल हो गया, पर पहले विद रिस्पेक्ट टू y था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये क्या बन गया, कर्ल x कर्ल। तो हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले डिस्कस किया था कि दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, आइदर दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पहले, देन उसके बाद में ये क्या है, कर्ल वाई कर्ल एक्स, बट दीज बोथ फंक्शंस आर क्या है, इक्वल एज दीज आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। सो दिस मींस बेटे हमारी इनकी राइट हैंड साइड जो है बराबर आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया, कर्ल एंड अपॉन कर्ल वाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड और कर्ल एंड अपॉन कर्ल एक्स के आगे हमारे पास इक्वल आ गया। सो हमारे पास अगर हम इक्वेशन को एक्सपेक्ट लेके चलते हैं, देन वी हैव कंक्लूजन दैट कर्ल एंड अपॉन कर्ल वाई इसकी इक्वल आ जाता है, कर्ल एंड अपॉन कर्ल एक्स की बराबर आ जाता है। अब इसकी दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है, सफिशिएंट कंडीशन, तो उसमें हम क्या लेके चलेंगे, इन दोनों की इक्वल लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, भी इक्वेशन हमारी क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म ऑफ सम फंक्शन का डेरिवेटिव की फॉर्म। यस, इफ दे आर इक्वल, यस, ये हमें लेके चलना है। नाउ लेट इंटीग्रल m dx को हम क्या लेके चल रहे हैं, u लेट कर रहे हैं, इंटीग्रल m dx इंटीग्रेशन m की हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, इफ दिस इज इक्वल टू u। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ वी आर टेकिंग डेरिवेटिव। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी x के विद रिस्पेक्ट टू हो रही थी, डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमारे आपस में क्या होगी, कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली m। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल u अपॉन कर्ल x। दिस मींस ऑन डिफरेंशिएटिंग वी आर लेफ्ट विद ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली m और यहाँ पे क्या आ गया, कर्ल u बाय कर्ल x। सो जो हमने लेट किया था इंटीग्रल m dx इज इक्वल टू u, उसको हमने नंबर 1 दिया और ऑन डिफरेंशिएटिंग जो रिजल्ट आया उसको हमने नंबर 2 दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटे, हम m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं और हमें जो गिवन है उसका भी हमें यूज करना है। सो नाउ वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या बन गया, कर्ल स्क्वायर u x था और हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू लिया है y। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों इक्वल है बिकॉज़ हमें गिवन ही है। नाउ अब हम क्या लेके चल रहे हैं, कर्ल एंड अपॉन कर्ल एक्स लेके चल रहे हैं, और हमारे पास क्या है, इसकी जगह पे हमने कर्ल एंड अपॉन कर्ल एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये फैक्टर दोनों क्या है, हमारे बराबर है। फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, कर्ल एंड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एंड अपॉन कर्ल एक्स जो कि है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। सो हम यहाँ पे वो वैल्यू भी लिख सकते हैं, दूसरी वैल्यू भी उसकी लिख सकते हैं। यहाँ पे वाई एक्स था तो हम यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं। इसको रीराइट कर लिए, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इज कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई। जैसे हमने यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डेरिवेटिव लिया, इसमें ऑपोजिट चलते हैं। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इंटीग्रेशन लोगे बेटे, यहाँ पे डेरिवेटिव था और यहाँ पे इंटीग्रेशन लोगे, कैंसिल हो गया बिकॉज डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पहले लिया हुआ, इंटीग्रेशन अब ले रहे हैं, तो ये कैपिटल एन रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। We are differentiating integrating with respect to x, this means function y वाला क्या हो गया, constant। so यहाँ पे function of y आ जाएगा because जब इंटीग्रेशन करते हैं हमारे पास क्या आता है, constant of integration, और वो क्या आएगा in the form of y because x is a variable। तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटे, f of y, and this is our equation number 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको इक्वल लेके चले थे। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इज एग्जैक्ट, मतलब m dx plus m dy इसको हम लेके चल रहे हैं। यस, कैपिटल M की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, कर ली upon कर ली x, dx एज इट इज कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है,
करली अपॉन करली बाई एफ वाई और दोनों टर्म्स के साथ क्या आ रहा है डी वाई है। नेक्स्ट क्या है यू नो दिस, इसको क्या कहेंगे कर्ली अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स कर्ली अपॉन कर्ल वाई, ये हमारा फैक्टर किसके इक्वल होता है डी यू के इक्वल, और ये दिस टर्म एफ वाई डी वाई एक्स बिकॉज यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, डेरिवेटिव लेंगे तो वो दोनों के साथ ही आएगा, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज डी, this means now we have conclusion that m dx plus m dy can be represented in the form of derivative. So this equation is exact differential equation, or this equation is said to be m dx plus m dy is said to be exact, और इसको हमने du की फॉर्म में लिखा डेरिवेटिव, तो ये exact differential equation हमारी बनी। So necessary and sufficient condition में firstly we take if equation is exact then curl m upon curl y is equal to curl m upon curl x. If they are equal then we will get this equation